الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہم سب کے لیے آج نہایت ہی خوشی کا، مسرت اور شادمانی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اجتماعی طور پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے عائد کیے گئے اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ شکر کا موقع ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ کا اس موقع پر شکر ادا کریں۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میرے بندو تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ماہ سیام رحمتوں، برکتوں، عنایتوں، نوازشوں کا مہینہ تھا۔ یقیناً یہ مہینہ گزر گیا، ہم میں سے بہت سے لوگ اس ماہ مبارک کو پانے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یقیناً سال گزشتہ بزرگوں، بہت سے احباب نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، تراویحاں پڑھی تھی اور عید بھی منائی تھی، لیکن ہم موجود ہیں وہ اس دنیا سے رخت سفر باندھ کر کے دائمی اور ابدی سفر کی جانب اور ہمیشگی کی منزل کی جانب رواں دواں ہو چکے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ کا اس طور پر احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع عطا فرمایا۔ بزرگوں، دوسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے اس مبارک مہینے کو پایا، لیکن اس مبارک مہینے کو پانے کے بعد اپنے آزار کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، صحت کی ناسازی کی وجہ سے، مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ سے اس نعمت سے محروم رہے۔ بہت سارے وہ لوگ جو بیچارے شدید بیمار ہیں، بہت سے وہ لوگ دمے کے بیمار مبتلا ہیں،
کوئی شوگر کی سخت بیماری کے اندر مبتلا ہے، کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی گردوں کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی دل کی بیماریوں میں مبتلا ہے، چاہ رہے ہیں کہ روزہ رکھیں لیکن اس نعمت سے محروم۔ تو ہم پر کتنا اللہ جل جلالہ نے احسان کیا کہ موقع بھی دیا اور ان آزار کے اندر مبتلا نہیں فرمایا۔ شکر ادا کریں بزرگوں، اور اللہ سے عافیت مانگیں کہ اللہ ان بیماریوں سے، تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ تیسرا طبقہ وہ تھا بزرگوں جنہوں نے ماہ رمضان کو پایا، لیکن پانے کے بعد اپنی بددینی کی وجہ سے اس نعمت سے محروم۔ ہم پر کتنا اللہ جل جلالہ کا احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں موقع دیا، موقع دینے کے بعد ہمیں اس طبقے کے اندر پیدا نہیں فرمایا۔ شکر کیجئے بزرگو اللہ جل جلالہ کا، اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تیرا شکر کرنے میں تو ہماری مدد فرما، تیری یاد میں تو ہماری مدد فرما، اور تیری عبادت کرنے میں تو ہماری مدد فرما۔ ہر موقع پر اللہ جل جلالہ کا بزرگوں شکر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہر موقع پر ہمیں اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ملتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا بھی پہنتے تھے؟ الحمدللہ الذی کسانی ما واری بہ عورتی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کپڑا پہنایا، جس کی وجہ سے میں اپنے سطر کو چھپا رہا ہوں۔ کھانا کھا رہے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پلایا۔ آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اترتے وقت الحمدللہ، چڑھتے وقت اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی۔ عید کا حاصل یہی ہے بزرگوں کہ اوامر الہی کو برقرار رکھا جائے، اوامر الہی کو زندہ کیا جائے۔ بزرگوں سعادت مندی کی بات ہے، یہاں اڑی کے اندر دارالعلوم قائم ہوا ہے، اس دارالعلوم کا یہاں چندہ ہوگا، آپ حضرات دل کھول کر کے اس کی معاونت کریں گے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے بزرگوں، اللہ جل جلالہ کہ ہر موقع پر بزرگوں، ہر موقع پر اللہ کے اوامر کو زندہ کیا جائے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ شفقت خداوندی، مخلوق پر شفقت کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق پر شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ اس لیے بزرگوں آج کے جو دن ہے نا، یہ انعام کا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج فرشتے چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ آج اللہ جل جلالہ تمہارے گناہوں کو بخش رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں اور مغفرت تمہاری فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آج جو فرشتے اعلان کر رہے ہیں جن لوگوں کے متعلق، جن افراد کے متعلق، کہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو، انہی افراد کے اندر ہو۔ بزرگوں ماہ سیام گزر گیا، ماہ سیام کے گزرنے کے بعد پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے پتا چلے کہ ماہ رمضان ہمارا قبول ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے اس کا ایک آسان سا فارمولہ بتا دیا، ماہ رمضان کیسے پتا چلے کہ اللہ جل جلالہ کی یہاں قبول ہو چکا ہے؟ فرمایا کہ ایمان والے ماہ رمضان کے اندر جو اعمال کر رہے تھے، ماہ رمضان کے اندر، ماہ رمضان کے بعد بھی اگر انہوں نے ان اعمال کو جاری اور ساری رکھا، سمجھ لیجئے کہ اللہ کے یہاں ان کا رمضان قبول ہو گیا۔ ماہ رمضان کے بعد نمازوں کا اہتمام، پابندی سے مسجدوں کا رخ ہم کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام۔ ماہ رمضان کے بعد بھی اگر یہ چیزیں جاری رہیں، ہم نے اپنی مسجدوں کو نمازوں کے ذریعے سے آباد رکھا، قرآن کریم کی تلاوت ہم کرتے رہے، ہم اگر اسی طرح سے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، سمجھ لیجیے بزرگوں کہ ہمارا ماہ رمضان اللہ جل جلالہ کے یہاں قبول ہو چکا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ
खुदा ना खास्ता अगर माह रमजान गुजरते ही हमने नमाजों से भी छुट्टी कर दी, मसाजिद का रुख भी हमने छोड़ दिया, तिलावत कलाम इलाही का एहतिमाम भी नहीं किया, और गरीबों के साथ, जरूरतमंदों के साथ, मोहताजों के साथ हमदर्दी, मवासात और गमखारी का मामला जारी नहीं रखा, तो फिर खतरे की बात है। कहीं ऐसा ना हो कि ये रमजान हमारे लिए कबूलियत नहीं बल्कि अदम कबूलियत का ज़रिया और सबब बन जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है बुजुर्गों, जिस तरह से माह रमजान में हमने अपनी मसाजिद को कामयाब आबाद रखा, माह रमजान के गुजरने के बाद भी अपनी मसाजिद को आबाद रखिए, जमात के साथ अपनी मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ने का एहतिमाम कीजिए, अपनी मसाजिद को आबाद कीजिए बुजुर्गों, नमाजों के जरिए से अपनी मसाजिद को आबाद कीजिए, तिलावत कलाम इलाही के जरिए से, और साथ में अपने घरों का माहौल भी बनाइए बुजुर्गों, अपने घरों को आबाद कीजिए, अपने घरों के अंदर तिलावत कलाम इलाही का माहौल बनाएं। हम जो अपने बच्चों को मदारिस में, मकातिब में, दरसगाहों में कुरान करीम पढ़ाने के लिए भेजते हैं, कभी कभी उसका जायजा ले लिया करें कि हमारे बच्चे जो मकातिब में जा रहे हैं, क्या वहां जाने के बाद इन्हें वो तालीम हासिल हो रही है या नहीं, क्या वहां कुछ इन्होंने पढ़ा है या नहीं। हम अपने बच्चों 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो मकातिब में पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों ने मकातिब के अंदर क्या पढ़ा है, इसकी फिक्र करनी है बुजुर्गों। जब हमारे बच्चे कुरान करीम खत्म करें, कुरान करीम को खत्म करने के बाद अब ऐसा नहीं कि सारे मामला से हमारी छुट्टी हो गई, नहीं, अब असल तालीम का और अमली जिंदगी का आगाज हुआ है। अपने बच्चों को अपने सामने घरों के अंदर बिठा करके कुरान करीम की तिलावत कराइए और पाबंदी के साथ इस मामूल को अपनाइए बुजुर्गों। अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने घर वालों को एक माहौल बनाएं बुजुर्गों, माहौल घरों के अंदर, कि हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे कुरान की तिलावत करें, सुबह सवेरे जागने का माहौल बनाएं, वालिदैन भी और अपने बच्चों को भी जगाएं बुजुर्गों। माह रमजान में हमें एक माहौल मिला था सुबह सवेरे जागने का, सुबह सवेरे उठ करके तहज्जुद पढ़ने का, मसाजिद की तरफ जाने का। माह रमजान के बाद इसमें हम बहुत कोताही करते हैं, हम ताखीर से उठते हैं, नतीजा ये निकलता है हमारे बच्चों को माहौल नहीं बन पाता है बुजुर्गों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, 8 साल की उम्र में अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करो। हम जरा जायजा लें बुजुर्गों, क्या हम इस हदीस पर अमल पैरा हैं? क्या हमने इसकी तरफ तवज्जो की है? क्या हमने इसकी फिक्र की है? क्या हमने अपने बच्चों की आखिरत बनाने की, आखिरत संवारने की कोशिश, साई और फिक्र की है? फिक्रमंद हो जाए बुजुर्गों अपनी औलाद के सिलसिले में, अपनी औलाद की तरबियत के सिलसिले में, अपने घरों की तरबियत के सिलसिले में, घरों का माहौल दीनी माहौल बनाने में। इसलिए सुबह सवेरे अपने बच्चों को जगाएं बुजुर्ग, नमाज उन्हें पढ़ाएं। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल की उम्र में नमाज छोड़ने पर अपने बच्चे की गोशमाली करो, हल्की सी सजा उन्हें दो, ताकि उन्हें आज इसे पता चले नमाज इतना अहम फरीजा है, इससे मफर, इससे छुटकारा नहीं है। तो मसाजिद की तरफ जाने का माहौल बनाएं बुजुर्ग, घरों में तिलावत का माहौल बनाएं। आमतौर पर हमारे ज़हनों में ये आता है कि हमने अपने घरों को आबाद करना है, किसके जरिए से? हमने लेंटर डाला, फिर प्लास्टर किया, फिर बेहतरीन किस्म की रंग बिरंगी पैनलिंग हमने की, पेंटिंग का इंतजाम हमने किया, फिर मैटिंग है और पर्दों और लाइटिंग का इंतजाम किया, शायद इससे हमारे घर आबाद होंगे बुजुर्ग। हमारा यही ज़हन बना है कि हम में से जिसका आलीशान घर है, आलीशान बगला और कोठी है, शायद इस वजह से आबाद। दुनिया भर की आसाइशों का हम इंतजाम करते हैं अपने घरों में, लेकिन याद रखिए बुजुर्गों, हमारे उन घरों में अगर अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा जाता है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो घर रेहाने घर की तरह है, वो आबाद नहीं है बुजुर्गों, वो घर आबाद नहीं है। आबाद घर कौन है?
وہ گھر فرمایا رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस घर के अंदर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, जिस घर के अंदर अल्लाह के कलाम की तिलावत होती है, आसमानों में वो घर सितारों और सूरज और चांद की मानिंद चमकता है, चाहे वो घर कोठे की सूरत में मौजूद क्यों ना हो, चाहे वो घर आरजी शेड की सूरत में क्यों ना मौजूद हो, चाहे वो घर झूंपड़पट्टी की सूरत में मौजूद क्यों ना हो, अगर घर के अंदर तिलावत हो रही है, अगर घर के अंदर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अगर घरों के अंदर कलामे इलाही पढ़ा जा रहा है, बुजुर्गों मुतमन हो जाइए कि हमारे घर आबाद हैं, हमारे घर शाद हैं, हमारे घरों का कोई वकार है, हमारे घरों की अल्लाह के यहाँ कोई कीमत है। लेकिन अगर घरों के अंदर अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा जाता है बुजुर्गों, फिर समझ लीजिए कि उस घर का कोई मकाम नहीं है बुजुर्गों। इसलिए अपने घरों को आबाद करें बुजुर्गों, तिलावत कलाम इलाही के जरिए से, कुरान करीम के पढ़ने के जरिए से अपने घरों के अंदर माहौल बनाएं बुजुर्गों, और फिर अपने बच्चों की तरबियत करें बुजुर्गों। हमें खुशी उस वक्त होती है जब हम ये सुनते हैं कि फलां के बेटे ने केएस क्वालिफाई कर लिया, केपीएस क्वालिफाई कर लिया, एमबीबीएस क्वालिफाई कर लिया, किसी अच्छे ओहदे का उसके लिए इंतखाब किया गया, उसने क्वालिफाई कर लिया, खुशी की बात और उन वालिदैन के लिए सआदतमंदी है। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब हम ये सुनते हैं क्या बच्चे ने कुरान पढ़ा है, तो वालिदैन की जुबानी सुना जाता है, नहीं जी कुरान नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे। अच्छी पोस्ट बेटे को मिली, अच्छा ओहदा मिला, अच्छी नौकरी मिली, लेकिन कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद उन्हें मालूम नहीं, अल्लाह जल्ल जलालू के हुकूक का इल्म नहीं, हमारे इस दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या है, हम इस मकसद से नावाकिफ हैं, इसका हमें इल्म नहीं है, इसका इल्म नहीं। फिर क्या होगा बुजुर्गों? फिर यह होगा कि अल्लाह हिफाजत फरमाए आगे चल के कहीं ये इर्तिदाद के शिकार हो रहे हैं, कहीं दीन इस्लाम से बेजार हो रहे हैं। इस वक्त बाज़ाब्ता चल रही है बुजुर्गों, एक्स मुस्लिम की इस्तिलाह, बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल हो चुके हैं कि साबिक में मुस्लिम थे, ईमान वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को छोड़ दिया, इस्लाम को छोड़ दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। मिलते चल रही है सारी दुनिया के अंदर बुजुर्गों। हम अपने घरों के अंदर माहौल बनाएं। हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को इसी चीज की वसीयत करते थे कि हमारे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो वो क्या कहते थे कि हम आपके बाद आपके परवरदिगार अल्लाह जल्ल जलालहू की इबादत करेंगे। तो हम अपनी औलाद को वसीयत करें कि हमारे बाद किसकी इबादत करोगे। हमारी औलाद का इतना ज़हन बना होना चाहिए कि हमारे बाद वो कहने लगे कि अब्बा जी आपके बाद हम आपके परवरदिगार अल्लाह जल्ल जलालहू की इबादत करेंगे। तो इसका माहौल बनाएं बुजुर्ग अपने बच्चों के अंदर, ये बच्चों को बताएं, सिखाएं। जो आमतौर पर कहा जाता ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कुछ भी नहीं हो सकता मगर किसके अलावा, अल्लाह के अलावा। सारी कायनात का निजाम अल्लाह चला रहे हैं, सारी कायनात का निजाम अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। सारी कायनात का निजाम किससे चल रहा है बुजुर्गों? और हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन होनी चाहिए। ईमान वाले की इतनी कीमत है, इतनी कीमत है, इतनी अजमत है बुजुर्गों। ये जो हम वसी कायनात देख रहे हैं, जमीनों का निजाम, आसमानों, चांद, सूरज, सितारों, सैयारों का निजाम, दरियाओं, हवाओं, फिजाओं का, बेअबानों, दरियाओं और समुद्रों का निजाम देख रहे हैं, ये किसकी वजह से कायम है बुजुर्गों? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले की वजह से कायम और दायम है। किसकी वजह से कायम है बुजुर्गों? ला इलाहा। इसी वास्ते असन को बचपन दी माहौल में लिया सब बुजुर्ग कहा दी लेतरी बीच में क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
जंगल बीच बूटा कप के जिसले कोठे बनांदे आसे ना उस बूटे को टोए वेले भी क्या दे बुजुर्गो ला इलाहा इल्लल्लाह। कोठे पर मिट्टी सटो किए पड़ा बुजुर्गो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका माहौल बना हुआ था बुजुर्गो, औरतों में भी, मर्दों में भी, बुजुर्गों में भी, बच्चों में भी, हर एक में ये माहौल बना हुआ था। लेकिन अब ये माहौल रुखसत हो रहा है, आहिस्ता 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 रुखसत हो रहा है। क्यों रुखसत हो रहा? इसलिए कि हमने इसकी अजमत को बयान नहीं किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह ही की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले ही की वजह से सारी कायनात का निजाम चल रहा है बुजुर्गों। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कमजोर क्यों ना हो बुजुर्गों, कमजोर ईमान वाला क्यों ना हो, दुनिया के अंदर अपने आप को सुपर ताकतें कहने वाली और सुपर ताकत कहलाए जाने वाले ममालिक वो इस ईमान वाले की तुफैली हैं। ईमान वाला है तो वो हैं, ईमान वाला नहीं होगा तो वो भी नहीं होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यिरत कहीं अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। कहीं अल्लाह जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाते हैं इज़ा समाउ शक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्दु मुद्दत। सारे क़यामत के अहवाल, ईमान वाला नहीं रहेगा तो चांद भी बैनूर हो जाएगा, सितारे भी बिखर करके टूट पड़ेंगे बुजुर्गों। तो अपने नौजवानों को समझाइए बुजुर्गों, हमारा नौजवान बुराइयों से बचे, बेहयाइयों से बचे, शराब नोशी से बचे। बुजुर्गों कुर्बे कयामत की अलामत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुर्बे कयामत में शराब आम हो जाएगा। हमारे नौजवानों के सामने जब शराब की हुर्मत मौजूद होगी, कि शराब को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया। और ये बात अच्छी तरह से हमारे जहनों में रहनी चाहिए बुजुर्गों कि शराब और पेशाब का हुक्म बराबर है। जो हुक्म पेशाब का है वही हुक्म फिक़ह के अंदर शराब का है। पेशाब अगर कपड़े के साथ लग जाए नमाज नहीं होती है बुजुर्गों, जब तक ना कपड़े को धोया जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर शराब कपड़ों के साथ लग जाए तो नमाज नहीं होगी। शराब से दूर रहे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन शरिबल खमरा, जिसने शराब पी सबसे पहले गुनाह से यह होगा तरक सला, वो नमाज को छोड़ देगा। शराब पीने वाला नमाज के करीब नहीं आएगा, इसकी अक्ल ज़ाइल हो जाएगी, इसके दिमाग के अंदर एक फतूर पैदा होगा। उस फतूर के नतीजे में क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकाला उम्मीही व अम्मतिही व खालतिही, कि वो अपनी मां के साथ, अपनी खाला के साथ, अपनी फूफी के साथ मुकाला कर सकता है। क्यों? अकल नहीं रही। अब मां की कीमत इसके सामने कुछ नहीं, खाला की कीमत इसके सामने कुछ नहीं है, फूफी की कीमत इसके सामने। अब देखिए बुजुर्गों, यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकद्दस रिश्ते को बयान किया। इस कायनात के अंदर सबसे मुकद्दस रिश्ता किसका रिश्ता है? मां का रिश्ता है ना बुजुर्गों। मां के बाद खाला का, फूफी का, ये बहुत मुकद्दस रिश्ते हैं बुजुर्गों। शराब पीने वाला मां के साथ भी मुकाला कर सकता है, इस मुकद्दस रिश्ते को भी पामाल कर सकता है। जब मुकद्दस रिश्ते की इसके सामने अहमियत नहीं रहेगी, क्या किसी की बेटी बहन की कीमत इसके सामने नजर आएगी? किसी की बेटी की इज्जत इसके सामने रहेगी बुजुर्गों? इसीलिए फरमाया अल्लाह जल्ल जलालहू ने कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फजतनिबू। सारे के सारे शैतानी काम है, इनसे बचो, अपने आप को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ बुजुर्गों, अपनी नस्लों को बचाओ। जिस कौम के अंदर शराब का दौर दौरा होगा, उस कौम के अंदर कोई डॉक्टर नहीं बन सकेगा, उस कौम के अंदर कोई आलिम नहीं बन सकेगा, उस कौम के अंदर हुफाज पैदा नहीं हो सकेंगे। मनशियात से अपने नौजवानों को दूर रखें, चरस से, ब्राउन शुगर से, अफीम से, हीरोइन से अपनी नस्लों को बचाइए बुजुर्गों, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी।
मंशियात के जरिए से हासिल होने वाली रकम वक्ती तौर पर बहुत बड़ा सरमाया दिखेगा, लेकिन नतीजतन बुजुर्गों नस्लों की बर्बादी है, कौमों की बर्बादी है, खानदानों की बर्बादी है, तबाही है। अपनी नौजवान नस्ल को बचाइए और अपने घरों के अंदर, अपनी मस्तूरात के अंदर पर्दों का एहतमाम कीजिए। बुजुर्गों, गैरतमंद आदमी का तकाजा यह है, उसकी बहन, बेटी, उसकी बहू, उसकी मां जब उसके घर से बाहर निकलेगी तो पर्दे का एहतमाम करके निकलेगी। हम सब ऐड करें बुजुर्गों आज से कि हमारी मस्तूरात जब भी हमारे घरों से निकलेंगी तो पर्दे का एहतमाम करके निकलेंगी इंशाअल्लाह। हम सब अपने नौजवानों की फिक्रमंदी के सिलसिले में अपने नौजवानों को थोड़ा वक्त देंगे। बुजुर्गों, शराब की हुर्मत को, इसकी कबाहत को, मंशियात की खराबी को, इससे होने वाले मिली और इज्तिमाई नुकसान को अपनी नौजवान नस्लों के सामने बयान करेंगे। सब फिक्रमंद हो जाएंगे इसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला। सब फिक्रमंद करिए, फिक्रमंदी के साथ काम लेंगे ना इंशाअल्लाह बुजुर्गों, सारे के सारे फिक्रमंदी से काम। और बुजुर्गों, अल्लाह के अहकाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी के अंदर लाने की फिक्र कीजिए। हमारा हर काम सुन्नतों के मुताबिक हो, हर काम, उठने की, बैठने की, चलने की, माशरे में रहने की, बाजारों के अंदर चलने की सुन्नत, हर सुन्नत का एहतमाम कीजिए बुजुर्गों, हर सुन्नत का एहतमाम। जब हम सुन्नतों का एहतमाम करते हैं, इस सुन्नत पर अमल करने वाले को अल्लाह जल्ल जलालहू 4 तरह से इनामात से नवाजते हैं। 4 तरह से। पहला इनाम क्या? अल-हाइब, नमाज किस वक्त पर पढ़ इमन वजह से 10 मिनट लेट, 5 मिनट लेट जो फेरा लगी सफेद दुरुस्त कर लें बुजुर्गों, बैठ जाएं जो हजरात बात है, नमाज टाइम पर हो गई, क्यों पर बैठ जाएं, सफों में बैठ जाएं बुजुर्गों। बुजुर्गों, जब सुन्नत पर अमल करने लगते हैं तो 4 तरह से इसका एजाज और इकराम किया जाता है। अल मोहब्बतु फी कुलूबिल बरारा, नेक लोगों के दिलों के अंदर इसकी मोहब्बत डाल दी जाती है, इसे पता ही नहीं होता बुजुर्गों। सालिहीन, अल्लाह वाले, अल्लाह के दोस्त इसके लिए दुआओं का एहतमाम कर रहे होते हैं। बल हैबतु फी कुलूबिल फजरा, फाजिर और फासिक, अल्लाह के बागी और अल्लाह के नाफरमानों के दिलों में इस सुन्नत पर अल्लाह ताला हैबत और खौफ डाल देते हैं। तो सुन्नत पर अमल कीजिए बुजुर्ग। वस्सातु फी रिज़्क़, अल्लाह जल्ल जलालहू रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमा देते। वजह क्या बनती है? सुन्नत पर अमल करना, सुन्नत पर। और सुन्नत पर अमल करने के नतीजे में अल्लाह क्या फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालहू इस सुन्नत पर अमल करने वाले को अपना महबूब बनाते हैं। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत कीजिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कीजिए। इस इताअत के नतीजे में कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से फरमा दीजिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह का महबूब बनो, इसका आसान नुस्खा और फार्मूला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के नतीजे में आप अल्लाह के महबूब बन जाएंगे, अल्लाह के प्यारे बन जाएंगे और अल्लाह के दुलारे बन जाएंगे। अल्लाह की मदद आपके साथ होगी, अल्लाह की नुसरत आपके साथ होगी, आपकी हैबत गैरों के दिलों के अंदर अल्लाह जल्ल जलालहू तारीफ फरमा देंगे। इसलिए सुन्नतों का माहौल अपनाएं बुजुर्गों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुजुर्गों कि हर कौम की एक ईद होती है, ये जो दिन है ये हमारी कौम का ईद है। इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना, हर कौम के लिए एक ईद का दिन होता है और ये दिन जो है ना बुजुर्गों, ये हमारी ईद का दिन है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईदगाह जाने से पहले पहले सदका फितर अदा करें। क्यों? इसलिए कि ये ईद सिर्फ मालदारों की ईद नहीं है। हम जो सदका फितर अदा करेंगे, हमारे सदका फितर के नतीजे में गरीबों की भी ईद हो जाएगी, नादारों की भी ईद हो जाएगी, ज़ईफों, बेवाओं, कमजोरों, मोहताजों की भी ईद हो जाएगी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का मामूल था कि ईद की नमाज से पहले पहले ग़िज़ाई चीजें, ग़िज़ाई अशिया गरीबों में और फुकरा में और मदीना तैयबा के जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया करते थे। अगर किसी शख्स ने ईद उल फित्र की नमाज से पहले अदा नहीं किया तो ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के बाद उससे साकित और माफ नहीं हो जाता है, बाद में अदा करे वो उसकी तरफ से अदा हो जाएगा।
लेकिन अदा करना है हर हाल में। और जो लोग अपने आजार की वजह से रोजे नहीं रख सके, अपनी बीमारियों की वजह से, ऐसा बीमार जिसके तंदुरुस्त होने की कोई भी उम्मीद नहीं, ऐसा बीमार खौफनाक बीमारी के अंदर मुब्तला है, माहिर डॉक्टर ये बताते हैं कि अब इसकी सेहत की कोई उम्मीद नहीं है, फरमाया कि ऐसा आदमी अपने रोजों की तरफ से फिदिया अदा करेगा। आमतौर पर बुजुर्गों जो मस्तूरात बीमार होती हैं, माहाना महीने के अंदर जो मखसूस अयाम उनके शुरू होते हैं, वो औरतें अगर उन रोजों का फिदिया देना चाहें, वो फिदिया उनका मोतबर नहीं है। इन औरतों ने ये अयाम गुजरने के बाद, माह रमजान के बाद इन रोजों की कज़ा रखनी है। फिदिया वो लोग देंगे जो किसी सख्त बीमारी के अंदर मुब्तला हैं या इतने ज़ईफ हो चुके हैं कि रोजा उनसे रखा नहीं जा रहा है, तो ये अपनी तरफ से फिदिया देंगे। और एक रोजे का फिदिया 1.25 किलो गेहूं या इसकी कीमत जो इस वक्त मुतय्यन हुई है पूरे कश्मीर के अंदर तकरीबन 70 रुपए अपनी तरफ से और उन लोगों की तरफ से देगा जो इस रोजे से महरूम रहे बेचारे। इसके अलावा बुजुर्गों, जिन हजरात ने अपने अमवाल की ज़कात अदा की, वो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हम जब ज़कात अदा करते हैं, इस ज़कात के नतीजे में अल्लाह जल्ल जलालहू हमारे अमवाल को पाक और साफ करते हैं। फरमाया अल्लाह जल्ल जलालहू का हुक्म यह है कि 97.5% को पाक और साफ करने के लिए 2.5% माल अल्लाह के रास्ते में अदा करो। इसके नतीजे में अल्लाह जल्ल जलालहू आपका माल पाक और साफ कर देंगे। बुजुर्गों, आप हजरात सफ़ों में बैठ जाएं, बस नमाजी ईद की तरतीब अर्ज की जाएगी। इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि अपने वक्त पर नमाज अदा की। सफ़ों के अंदर बैठ जाएं बुजुर्गों। बाहर जितने भी हजरात खड़े हैं सब देखिए बुजुर्गों, ईद खुशी का दिन है, ईद खुशी का दिन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से और अमल से ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमाई तौर पर ईद की नमाज अदा फरमाते हैं। इसलिए कोशिश किया करेंगे इज्तिमाई तौर पर नमाज ईद पढ़ने की। इससे 2 फायदे हैं। एक फायदा यह है कि इज्तिमाई तौर पर जब हम किसी मैदान के अंदर या ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ेंगे, बहुत सारे ज़रूरतमंद वहाँ होते हैं, इज्तिमाई तौर पर जब हम उनकी मावनत करेंगे, मदद करेंगे, यकीनन उनका फ़ायदा होगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा, इससे ईमान वालों की इज्तिमाइयत ज़ाहिर होती है और यही ईद का हासिल। वरना जुमा की नमाज हर मस्जिद में पढ़ते, लेकिन इसकी इजाज़त इसलिए नहीं है, इससे इज्तिमाइयत बाकी नहीं रहती। तो मुसलमानों की इज्तिमाइयत को बाकी रखने के लिए, शान को बाकी रखने के लिए, आन बान को बाकी रखने के लिए इज्तिमाई तौर पर ईद की नमाज किसी एक जगह में मैदान के अंदर या ईदगाह के अंदर पढ़ने का हुक्म किया गया है। अल्लाह ताला हम सबको बार बार ये सादत और ये खुशियां नसीब फरमाए। बुजुर्गों, नियत करनी है। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब के 6 जायद तकबीरों के साथ मुंह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर कह करके हाथ बांधो। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। दूसरी तकबीर के बाद हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर के बाद ये जायद तकबीरें कही जा रही, हाथ उठा करके छोड़ देने। चौथी तकबीर के बाद हाथ बांध लेने हैं और सूरह फातिहा उसके साथ सूरत मिलाई जाएगी। उसके बाद रुकू होगा, सजदे होंगे। इस तरह से पहली रकअत मुकम्मल। जब हम दूसरी रकअत के लिए खड़े होंगे तो पहले हमने किरात करनी है, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ सूरत मिलाएंगे, उसके बाद जायद तकबीर अल्लाह अकबर कानों तक हाथ उठाएं और हाथ छोड़। दूसरी तकबीर अल्लाह अकबर कह करके हाथ छोड़ दें। तीसरी तकबीर अल्लाह अकबर कह करके हाथ छोड़ दें और चौथी तकबीर कहते हुए रुकू के अंदर चले जाएं। रुकू के बाद सजदा मामूल के मुताबिक